Hi viewers, welcome to Botany Point. Today I am coming with a new topic, that is nutrition in plants. And if you are the English viewer, the English version of this topic already uploaded and also given in the description box. So today we will cover here what is nutrients, what is nutrition, mode of nutrition in plants, and also photosynthesis. Okay, up to we cover in this video, and further topic will be coming with the next video. So let's start the video. So I have a note. Before we start this note, we should know about the food. Food और जो खाना हम बोलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज थ्रू फूड ही हमारा ग्रोथ होता है. ओके, सो फूड में ग्रोथ के लिए जो चीज़ है वो है एक टाइप का कंपोनेंट रहते हैं. ओके, एंड वही कंपोनेंट क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं. Those components of food are necessary for our body and are called as nutrients. So food में one type of components रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, और वही कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है सी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These components of food are necessary for our growth, and these components are known as nutrients. Okay, so food में nutrients रहते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो ये सब बॉडी में जो फूड में जो कंपोनेंट रहते हैं उनको बोलते हैं nutrients. Remember, food contain one necessary things that is called as component which are helpful for our body growth. Okay, and that example of components are carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. Clear up to this? Okay, now come about the second term, that is nutrition. What is nutrition? The process of providing or obtaining the food which are necessary for health and growth. So हम जैसे कि फूड में एक कंपोनेंट रहता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट. हर एक फूड में कंपोनेंट रहता है जो कि बॉडी ग्रोथ के नेसेसरी है, लेकिन वो जिस प्रोसेस में हम ऑब्टेन करते हैं उसी न्यूट्रिएंट को जिस प्रोसेस में हम ऑब्टेन करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. क्लियर? Here I have another definition. See, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Clear up to this? See, here दोनों की चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम चीज़ है. ओके, सो बट दोनों ही न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है. सो इसमें क्या हम कंक्लूड हुए, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड. ओके, जिसमें हम एक वे होता है, एक प्रोसेस होता है जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं. ओके, फूड को हम कंज्यूम करते हैं और वो फूड क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट कंटेन करता है. डैट मीन्स जिस प्रोसेस से हम कंपोनेंट को कंज्यूम कर रहे हैं फॉर आवर बेटर ग्रोथ और बेटर हेल्थ, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. और हर एक फूड में एक टाइप का कंपोनेंट रहता है और वो बहुत ही नेसेसरी थिंग होता है बॉडी ग्रोथ के लिए. वो चीज़ को बोलते हैं उसी कंपोनेंट को बोलते हैं न्यूट्रिएंट. नेवर कंफ्यूज अबाउट बिटवीन द वर्ड बिटवीन, दैट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट फूड का एक कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन जो है कंपोनेंट को और द न्यूट्रिएंट को टेकिंग और द कंज्यूम करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. क्लियर? दिस इज ऑल द डेफिनेशन अबाउट न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन. Now come to about mode of nutrition in plant. So before we know about the nutrition in plant, we should know about the types of nutrition. There are mostly of 3 types, but here we study about only 2 types. Okay, first one is autotrophic nutrition, second one is heterotropic nutrition. Autotrophic nutrition means auto means self. Okay, and autotrophic nutrition is the process. Autotrophic is a process, likewise heterotropic is a process, and the organism doing such process is known as autotrophs. Likewise here those organism doing heterotropic process called as heterotrophs. So here auto means self, trophs means nourishment. So they nourish their body or they develop their body. That means simply they can easily make their food inside their body. Okay,
those living organism easily make their food inside their body known as autotrophs. So here we can write that point. See, the living organism make their own food known as what? Autotrophs. Clear? Now come to about heterotrophs. Hetero means different or other, and trophs mean nourishment. So to nourishment their body for their growth and development, they always depend upon other. Okay, other organism. So here we can write that point also. The living organism depends upon other for their food. सो जो न्यूट्रिशन है वो मोस्टली 3 टाइप्स के हैं, बट यहाँ पे हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, नरिशमेंट मीन्स डेवलपमेंट, बॉडी को ग्रोथ के जो प्रोसेस बोलते हैं उसको नरिशमेंट बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना वो खुद रेडी कर सकते हैं, अपना खाना वो खुद रेडी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स. बट व्हाट इज हेटरोट्रोप्स? दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन अदर, जो खुद का खाना खुद कर नहीं सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रोप्स. एंड द प्रोसेस इज नोन एज, उनका जो प्रोसेस में जो करते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक प्रोसेस. लाइकवाइज यहाँ पे वो खुद का खाना खुद कर रहे हैं, कौन? ऑटोट्रोप्स. सो जो प्रोसेस में करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक प्रोसेस. क्लियर अप टू दिस? ये 2 टाइप के न्यूट्रिशन हम पढ़े. बट यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अबाउट प्लांट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर वी नो दैट द एग्जाम्पल, शुड वी नो अबाउट दैट ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल जो है पूरा अर्थ में जो एक ही टाइप के ऑटोट्रोप्स फाउंड होते हैं वो हो गया प्लांट केस. सो यहाँ पे प्लांट्स लिखेंगे. सो ऑल प्लांट्स कम अंडर ऑटोट्रोप्स. सभी जितने भी पौधे हैं सब ऑटोट्रोप्स के अंडर में आएंगे. देन कम टू आवर द हेटरोट्रोप्स. हियर व्हाट हैपन, हियर द प्लांट्स को छोड़ के बाकी जितने हैं उनको हेटरोट्रोप्स में रखा जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. क्लियर? सो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में. सो न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ें, जैसे कि उनका प्रोसेस है ऑब्टेन करने का. सो वहाँ पे जो ऑब्टेन करेंगे उसके लिए वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस में खाना कुक करेंगे. जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के केस में उनका खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है, राइट? देन लाइकवाइज प्लांट हैव सम प्रॉपर्टी और कैरेक्टर, दे कैन ऑल्सो मेक देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी सेल. ठीक है. तो उनके बॉडी सेल में वो बनता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बनता है, पर्टिकुलर प्लेस में बनता है, जो कि है लिप्स. सो लिप्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द फूड सिंथेसिस और फूड मेकिंग. सो फूड मेकिंग प्रोसेस में लिप ही पार्टिसिपेट करता है. ओके. सो यहाँ पे फूड को, लिप्स को बोलते हैं, लिप्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. यहाँ पे फूड फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं, लिप्स के थ्रू ही खाना उनका प्रस्तुत होता है. क्लियर अप टू दिस? ओके. नाउ कम टू अवर सेकेंड पॉइंट. जैसे कि हम हमारी किचन में कुछ खाना बना रहे हैं तो हमको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि हम चावल हो गया, पल्सेस या दाल या वेजिटेबल फ्रूट्स, वाट एवर वी नीड फॉर कुक दैट फूड. लाइकवाइज उनको भी वैसे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है उनके खाना बनाने के लिए. तो रॉ मटेरियल में लिप्स का क्या यूज करता है? वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो सनलाइट. दीज आर द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर देयर मेकिंग देयर फूड. सो यहाँ पे देखेंगे रॉ मटेरियल जो है वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट.
ये तो हो गया इनका रॉ मटेरियल, बट कम टू अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस में खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, मेकिंग और अदरवाइज नोन एज फूड सिंथेसिस। ओके, फूड सिंथेसिस ये इनका खाना बनाने का प्रक्रिया है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट, and the synthesis means what? Synthesis means formation, okay, or to combine. So यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन और कंबाइन हो रहा है। नाउ see the definition of photosynthesis. Photosynthesis is a process by which plant can make their food inside their cells or leaves. So लीफ में यहाँ पे खाना बनता है। ओके, सो एक उसके लिए एक प्रोसेस होता है, फर्दर हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट में प्लांट फूड मेक करता है। कहाँ पे करता है, लीव्स में करता है। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अप टू दिस क्लियर? नाउ we study the details about this raw material. Okay, so here first one is water and mineral. So water and mineral, where it found? So हम water and mineral को कहाँ से पाते हैं? So water and minerals mostly पाया जाता है inside of where? Soil. And ये absorb होता है through root. Then root absorb करने के बाद cells में एक प्लांट में पूरे बॉडी में वेसल्स रहते हैं। ओके, एंड वेसल्स का काम है ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द रूट से लेके पूरा लीफ तक ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए वेसल्स रहता है, ठीक है। और वो एक कंटिन्यूस पाथ होता है, वेसल्स को पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। उसके थ्रू से वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब फाइनली वो रीच करेगा कहाँ पे, लीव्स में। सी हियर, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट transported by vessel and it finally reaches to leaves. Got it? So water and minerals present inside the soil. ये soil में रहते हैं, इसको absorb करेगा root and then root absorb करने के बाद vessels के through से transport होगा and finally it reaches to leaf. लीफ में ही फूड सिंथेसिस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि लीफ को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लीफ को फूड फैक्टरीज। रिमेंबर दैट वन, लीफ आर द फूड फैक्टरीज ऑफ व्हाट, ऑफ प्लांट्स। नाउ कम अबाउट सेकेंड रॉ मटेरियल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम मोस्टली पाएंगे कहाँ पे, एयर में। ओके, एयर में और एटमोस्फियर में जो बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या होगा, जैसे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या करेगा, एंटर करना चाहिए लिप्स में, क्योंकि खाना लिप्स में बनेगा। तो लिप्स क्या होता है, लिप्स कंटेन करता है बहुत सारा वो पोर उसके सरफेस में मिलता है, ठीक है। तो उसमें उसको एंटर करना है, तो वो सरफेस में जो पोर है वो पोर को बोलते हैं स्टोमेटा। एंड दैट स्टोमेटा इज गार्डेड बाय और सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। ओके, तो स्टोमेटा के थ्रू से CO2 एंटर करता है। Leaves show certain pore-like structure called stomata and it is surrounded by 2 guard cells. And through stomata, CO2 get entered. See the structure of the stomatal pore. Structure कुछ इसी टाइप का होता है। See, ओके, तो ये जो पोर देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये पोर को बोलते हैं स्टोमाटा। ये जो बीन शेप देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये वाला जो है अंदर, ये पोर है, इसको स्टोमाटल पोर बोलते हैं, स्टोमाटा, और पूरा को स्टोमाटल अपैरेटस बोलते हैं। और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है हमारे लीफ के सरफेस में, ठीक है। क्लियर अप टू दिस? नाउ कम अबाउट द सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली सन से आएगा। एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई द सॉइल इज नोन एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के जैसे पढ़े, ऑटोट्रोप एंड हेट्रोट्रोप। तो हेट्रोट्रोप में हमारा क्या हुआ, सी है। सो हेट्रोट्रोप में एग्जाम्पल क्या था, एनिमल एंड ऑल्सो
ह्यूमन में। एंड ऑटोट्रोफ में एग्जाम्पल क्या पढ़े हम लोग, प्लांट्स को लेके पढ़े। सो प्लांट्स कहाँ से उनका खाना सिंथेसिस कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट भी चाहिए, जो सारे रॉ मटेरियल चाहिए वो भी चाहिए, उसके साथ साथ सनलाइट भी चाहिए। अच्छा, एनिमल डिपेंड होता है प्लांट के ऊपर, और कुछ और एक्स्ट्रा वही उन्हीं की दूसरी प्रजाति के भी एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। ह्यूमन भी क्या होता है, प्लांट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, उसके साथ एनिमल के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, साथ साथ प्लांट के साथ भी वो लोग डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप मान लो एक एग्जांपल एनिमल के लिए जा रहे, टाइगर। टाइगर क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है सब कुछ रैबिट के ऊपर। तो रैबिट कहाँ से खाएगा, जैसे रैबिट वो भेजी खाना पसंद करता है, तो वो क्या एब्जॉर्ब कर किसको खाएगा, प्लांट को खाएगा, ठीक है, प्लांट मटेरियल खाएगा। सो प्लांट मटेरियल जब खा रहा है, प्लांट कैसे ग्रोथ कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस से। सो फाइनली सन है, सन से प्लांट बढ़ रहा है, वही प्लांट को कंज्यूम कर रहा है रैबिट, और फाइनली रैबिट को टाइगर खा रहा है। अल्टीमेटली अगर सन नहीं रहेगा सो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता, और फर्दर प्रोसेस भी ये लोग भी बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो सन के प्रेजेंस से प्लांट बढ़ रहा है। अगर एनिमल और ह्यूमन बीइंग का केस ले जाओ, तो ह्यूमन मनुष्य के केस में क्या हो रहा है, मनुष्य सपोज कुछ भी खा रहा है, प्लांट भी खा रहा है डायरेक्ट, और एनिमल्स को जैसे ले रहा है, एनिमल्स पर मतलब फिश ले लो आप, ठीक है, फिर ले लो एग ले लो, काऊ, जैसे काऊ का जो क्या है बटर हो रहा है, काऊ से काऊ मिल्क काऊ का प्रोडक्ट क्या है, एनिमल प्रोडक्ट, दैट इज मिल्क, बटर, पनीर, ठीक है, कर्ड। तो ये सब मिल रहा है हमारे एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही एनिमल वही प्लांट को ही कंज्यूम करके ही ग्रोथ करते हैं, सेम थी। सो यहाँ पे प्लांट मेन रोल प्ले कर रहा है, बट प्लांट का ग्रोथ कैसे हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स वाई अल्टीमेटली हम घुमा फिरा के सन के पास ही पहुंच रहे हैं। सो सन होना बहुत नेसेसरी है, सनलाइट होना बहुत नेसेसरी है। दैट्स वाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है हर एक टाइम में। जैसे कि टाइगर रेबिट को खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है, रेबिट अगर प्लांट खा रहा है तो प्लांट को एनर्जी मिल रहा है, प्लांट सनलाइट के वजह से हो रहा है तभी उसका ग्रोथ हो रहा है, एनर्जी उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे इसलिए एनर्जी बोल के बोला गया है, सोलर एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर। नाउ अबाउट सम एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर जितने सब पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स और सब सेलुलर सेल ऑर्गेनल्स। सो सेल ऑर्गेनल्स में एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट है। सो वही ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा, ये जो सनलाइट है, सनलाइट आके फॉल होगा लीफ में, एंड लीफ में पड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा, यही क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। सो विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट वो लीफ के अंदर सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई ये भी एक इंपॉर्टेंट प्ले निभाता है। देन क्या हुआ, सी हियर, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके बाद क्या होगा, बाकी फोटोसिंथेसिस का बाकी प्रोसेस होगा। सी हियर, तो सारे रॉ मटेरियल और क्लोरोफिल कैसे हेल्पफुल हैं, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑल्सो क्लोरोफिल, तो फूड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन फूड फॉर प्लांट। उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, इतना तो होगा इनके रिएक्शन। नाउ कम अबाउट व्हाट हैपन व्हेन इट्स रिएक्ट्स। सो ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में निकलते हैं, ऑक्सीजन गेट रिएक्ट विथ कार्बोहाइड्रेट। सो अभी कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को। जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन करेंगे, तभी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च, ओके, एंड यही स्टार्च हम पाएंगे लीफ में, ओके। सो ये भी उसका फूड है, ये भी इसका फूड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा फॉर्म है, ठीक है, और एक रूप है, उसको बोलते हैं स्टार्च। इसी फॉर्म में ही वो स्टोर होकर रहता है, इसी पोजीशन में ही स्टोर होकर रहता है इनसाइड द लिप्स।
अगर लीव्स में अगर स्टार्च मिल रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हम सर्च कर सकते हैं लीफ में सर्च है या स्टार्च है या नहीं। अगर लीफ में स्टार्च मिल रहा है दैट मीन्स लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बिकॉज बाय बॉर्न वो लोग स्टार्च कंटेंट नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस करके ही धीरे धीरे करके ही वो लोग स्टार्च अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो वेरी बिगिनिंग जब उनका पत्ता जब सूर्य होना स्टार्ट हो जाता है तभी से उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। और अगर फोटोसिंथेसिस अगर स्टार्च है बॉडी में और लीफ के पत्ते में, देन you will confirm that the plant get under photosynthesis process. Okay, so this is all about the photosynthesis, nutrition and nutrient. So if you like this video, please hit the like button, share, comment and subscribe the Botany Point, and don't forget to hit the bell icon for the regular updates. Thank you so much.